OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your maths teacher. In the last lecture of the vectors, we discussed vector product of two vectors. It is also said to be cross product. कैसे define होता है? A cross B is equal to modulus of A modulus of B sin theta into n cap, where theta is the angle between two vectors and it lies between 0 to pi. In vector algebra we always take the angle of two vectors between 0 to pi. इसके beyond नहीं लेंगे. And n cap is a unit vector which is perpendicular to both A and B. Direction of n cap is given by the right-handed screw rule. क्या कहता है right-handed screw rule? If we have to find A cross B, तो curve the fingers from A to B and keep the thumb perpendicular to the fingers. तो अब जो thumb की डायरेक्शन आएगी, this is the direction of n cap. और अगर हमें B क्रॉस A निकालना है तो फिंगर्स को टर्न कीजिए फ्रॉम B टू A. अब जो n thumb की डायरेक्शन आएगी, this gives the direction of unit vector which is perpendicular to the two vectors. And after it हम लोग ने डिस्कस किया था how to find the area of parallelogram if two adjacent vectors are A and B. Two adjacent vectors of parallelogram are A and B, then the area of parallelogram is modulus of A cross B. और इसी में अगर हमने एक डायगोनल मिला दिया तो डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरियाज. तो कोई भी ट्रायंगल की एरिया आप लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम की हाफ हो जाएगी तो हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. फर्दर अगर हमें इंस्टेड ऑफ साइड्स वेक्टर के न दे करके अगर हमें डायगोनल वेक्टर्स गिवन है, सपोज दिस इज D1 वेक्टर एंड दिस इज D2 वेक्टर, तो ये हमने अपने से मान लिए साइड्स के अलोंग वेक्टर A and B है, but we have given vector along diagonals. तो this is D1 vector and this is D2 vector. अगर हमें इस केस में एरिया निकालनी पड़े तो how will you find the area of parallelogram? Since D1 vector कैसा आ रहा है? D1 vector is A plus B. Can we say D1 vector, because ये वेक्टर B है तो ये भी B हो जाएगा, तो D1 is A plus B. If this vector is A, तो ये भी वेक्टर A हो जाएगा, पैरेललोग्राम है. And D2 वेक्टर is, D2 का क्या होगा इन टर्म्स ऑफ AB? D2 की डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट से इस ओर जा रही है, तो दिस इज B एंड इधर आप जाएंगे तो माइनस A, तो D2 is B minus A. Since एरिया पैरेललोग्राम थी हमारी, एरिया पैरेललोग्राम है मॉडुलस A क्रॉस B. अगर हम D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट करें, D1 D2 एंड टेक द मॉडुलस, तो D1 इज B प्लस A प्लस B, बोथ आर सेम, क्रॉस B माइनस A. B cross B, as we discussed in the last lecture, A cross A is 0. तो B cross B 0 minus B cross A and then A cross B minus A cross A, it is 0. तो can we write minus B cross A cross B, and it is again A cross B. So it is 2 times A cross B. So D1 cross D2 modulus is 2 times A cross B, and A cross B क्या आ गया? हाफ मॉडुलस D1 क्रॉस D2. एंड A क्रॉस B क्या कहा है हमने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
लिख सकते हैं हाफ मॉडुलस d1 क्रॉस d2। इवन एनी क्वाड्रिलेटरल गिवन हो एंड डायगोनल वेक्टर्स d1 d2 हो तब भी हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यही लिखेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का ही ये फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन d1 and d2 are diagonal vectors। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल half modulus d1 cross d2, and this is general formula to find the area of any quadrilateral। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर साइड्स के वेक्टर गिवन है और डायगोनल वेक्टर गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालना है ये आपको अब क्लियर हुआ होगा। चलिए लेते हैं इस पे कुछ एग्जांपल्स। इफ ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप आर वेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then find the area of parallelogram। What is saying? A and B are two adjacent vector of a sides of a parallelogram। To say this is A vector and say this is B vector। A, B, C, D। Let AB vector is A vector while AD vector is B vector। What is given? A vector is I cap minus 7j cap plus 7k cap। B vector is 3i cap minus 2j cap plus 2k cap। Area of parallelogram as we know it is modulus of A cross B। A क्रॉस बी कैसे निकालते हैं आपको याद होगा। चलिए अगर हम साइड में A क्रॉस बी निकाल लें वी विल यूज डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट रो वी राइट I कैप J कैप K कैप। इन सेकेंड रो वी राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ I कैप J कैप K कैप फ्रॉम वेक्टर A। 1 minus 7 7, 1 minus 7 7। Second row is 3 minus 2 2, 3 minus 2 2। तो एक्सपेंड इट अलोंग फर्स्ट रो। आई कैप से बनने वाली रो और कॉलम हाइट कीजिए माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, दिस इज प्लस 14, 0 आई कैप। नाउ यू विल राइट माइनस जे कैप, ये कॉलम एंड रो कैंसिल किया, 1 2 जा 2, 2 माइनस 21 एंड के कैप यू विल राइट, ये रो कॉलम हाइट किया माइनस 2 प्लस 21। So this is 19j cap and this is 19k cap। So what is cross product A cross B? It is 19j cap plus 19k cap। Even you can take 19 common, तो I cap plus j cap का मॉडुलस, तो 19 into root over 1 square plus 1 square। It's a j cap and this is k cap actually। So root over 1 square 1 square, 19 root 2 square units। This is the area of the parallelogram। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड गिवन है तब भी निकाल लेंगे, और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के अलोंग अगर वेक्टर गिवन है तब भी हम एरिया निकाल पाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a unit vector A makes an angle of pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap and theta acute angle with the K cap, find theta and hence component। So it's not very difficult question। If LMN are direction cosines,
देन एल क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल अगर एक्स एक्सिस से बना रहा है तो एल होता है कॉस अल्फा, इट इज गिवन एक्स एक्सिस से पाई बाई 3 एंगल बना रहा है तो इट इज कॉस पाई बाई 3। सिमिलरली एम वाई एक्सिस से क्या एंगल बनाया, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, तो कॉस पाई बाई 4। सिमिलरली एन हो गया कॉस थीटा, बिकॉज इट इज गिवन हियर कि के कैप से या वाई जेड एक्सिस से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा इज एक्यूट, इट इज मेंशन, देयरफॉर L is cos pi by 3, it's a 1 by 2, M cos pi by 4, it's a 1 by root 2, and N is cos theta. As we know, क्या रिजल्ट हमारे पास है, L square plus M square plus N square is 1, तो L 1 by 2 square 1 by 4, M 1 by root square 1 by 2, N square 1, तो दिस इज एन स्क्वायर हो गया 1 माइनस दिस इज 3 बाई 4, तो 1 माइनस 3 बाई 4 इट्स अ 1 बाई 4, एन स्क्वायर 1 बाई 4, एन इज प्लस माइनस 1 बाई 2, बट इट इज गिवन थीटा इज एक्यूट, देयरफॉर कॉस थीटा या एन पॉजिटिव होगा, तो एन की कौन सी वैल्यू हो गई, एन इज 1 बाई 2। We will not consider negative sign क्योंकि acute angle क्वेश्चन में गिवन था, तो थीटा आ गया, थीटा वाज आस्किंग cos थीटा हाफ आ रहा है, तो थीटा कितना रहा होगा, पाई बाई 3। आफ्टर इट इज सेइंग फाइंड कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एलएमएन यूनिट वेक्टर है, तो एलएमएन आर द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ए, एलएमएन आर द components of unit vector A. Therefore, component क्या आ गया, L is 1 by 2, M is 1 by root 2, ये तो गिवन ही था, एंड N है, N हम लोगों ने निकाला cos थीटा या N, it is third component which is again 1 by 2, तो these are the answers। कंपोनेंट हो गया और थीटा पूछा था, दो पार्ट थे हमारे इस क्वेश्चन में, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। तो लेट द वर्टिसेस बी ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, 1 2 2 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट है 2 3 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 1 1 5 1 5 5। Therefore, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिस्कस हुआ था हम लोग का, अगर 1 2 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ कोऑर्डिनेट्स आर 1 1 2, तो पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी I cap plus 5j cap plus 5k cap. These are the vertices. Now we have to find vector AB. We have to find any two adjacent vectors. तो ट्रायंगल की एरिया हम लोग ने डिस्कस की थी, any two adjacent vector. तो सपोज वी आर कैलकुलेटिंग AB and AC. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC. तो AB वेक्टर AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, 2i minus I. Either you write 2i plus 3j plus 5k cap minus position vector of a I cap plus j cap plus 2k cap. Subtract these 2i minus I cap, 3 minus 1 2j cap, 5 minus 2 3k cap. Similarly, vector AC position vector of C minus position vector of A. Subtract the two position vector of C and position vector of A. I minus I, this is 0 I cap. 5 minus 1 4 j cap and 5 minus 2
3k cap. Therefore, area of triangle half modulus of AB cross AC. अब AB क्रॉस AC एज वी नो कॉन्सेप्ट बाई कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट की हेल्प से, I J K first row, second row you will write the coefficient of vector AB, 1 2 3. In second row we will write 0 4 3. अच्छा, this determinant give the cross product, लेकिन हमें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड चाहिए, तो these two stand for मैग्नीट्यूड, और ये डिटरमिनेंट की वर्टिकल लाइंस है. तो हाफ डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, आई कैप लिखा बाहर, तो ये रो और कॉलम हाइड करेंगे, 6 - 12 माइनस जे कैप, कॉलम एंड रो हाइड किया, 3 - 0 प्लस के कैप, रो एंड कॉलम हाइड किया, 4 - 0 एंड मॉडुलस हाफ मॉडुलस ऑफ -6i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप. एंड मॉडुलस कैसे निकालते हैं आपको वेरी अच्छे से पता है, √/(-6) प्लस -3² प्लस 4², हाफ 36 16 52 9 √61, तो √61/2 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. आई होप आपको कंसेप्ट आसान लगा होगा. कंसेप्ट एक्चुअली आसानी है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ MCQ क्वेश्चन. लेट A and B be the vectors such that modulus of A, या magnitude of A is 3, magnitude of B is 2/√3, then A cross B is a unit vector if the angle between A and B is, so which one is correct? What is saying, modulus A, it is to give, ये तो पता है हमें, modulus A 3 है, modulus B √2/3 है. Angle between A and B is asking, theta be the angle between A and B, and it is asked here. हमें और क्या गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, A cross B is a unit vector. What does it mean? A cross B is a unit vector. It means the magnitude of A cross B is 1. Not A cross B 1. Magnitude of A cross B is 1. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें पता है A cross B का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, डिस्कस हुआ था. मॉडुलस ऑफ A cross B is मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा. एन कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 हो जाएगा. वाइल वी राइट A क्रॉस B, तब एन कैप लिखते हैं. जब मॉडुलस A क्रॉस B लिखते हैं तो ओनली वी राइट मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा. दिस इज मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा is equal to 1. Modulus A is 3, modulus B it's a √2/3. Sin theta is 1. 3 we can cancel. Sin theta की वैल्यू 1/√2. If sin theta is 1/√2, there are two possibilities. क्योंकि हम थीटा 0 से पाई के बीच बनते हैं, तो 0 से पाई के बीच में 2 बार आएगा, बट किसी भी ऑप्शन में π/2 से बड़ा एंगल नहीं गिवन है, तो हम एक्यूट पे ही हम फोकस करेंगे. तो थीटा इज π/4. अच्छा, ये भी पॉसिबल था कि थीटा 3π/4 भी हो सकता है. तो आपसे डिस्कस हुआ था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन रूल टू फाइंड द एंगल, इट इज बेटर टू यूज कोसाइन कॉन्सेप्ट. तो लेकिन यहां पे हम जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जहां से साइन थीटा निकल पाएगा. यहां से 2 पॉसिबल वैल्यू जरूर है, बट MCQ में आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, तो देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज π/4. तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है. चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द कॉन्सेप्ट.